آپ سب پر سلامتی ہو۔ نصرت صدیقی کا لکھا ہوا ہے، فاصلے نہ بڑھ جائیں فاصلے گھٹانے سے، آؤ سوچ لیتے ہیں رابطے بڑھانے سے۔ آپ سب پر سلامتی ہو۔ نصرت صدیقی کا لکھا ہوا ہے، فاصلے نہ بڑھ جائیں فاصلے گھٹانے سے، آؤ سوچ لیتے ہیں رابطے بڑھانے سے۔ خواہشیں نہیں مرتی خواہشیں دبانے سے، امن ہو نہیں سکتا گولیاں چلانے سے۔ ایک ظلم کرتا ہے ایک ظلم سہتا ہے، آپ کا تعلق ہے کون سے گھرانے سے؟ جب بھی یاد آتی ہے بھوک پیاس لوگوں کی، ہاتھ کھینچ لیتا ہوں پیٹ بھر کے کھانے سے۔ کارگاہ ہستی میں اپنا دخل اتنا ہے، ہنس دیے ہنسانے سے، رو دیے رلانے سے۔ چھوٹے چھوٹے شہروں پر کیوں نہ اکتفا کر لیں، کھیتیاں اجڑتی ہیں بستیاں بسانے سے۔ چاند آسماں کا ہو یا زمین کا نصرت، کون باز آتا ہے انگلیاں اٹھانے سے؟ ناظرین، میں ہوں یاسر رشید اور آپ میرا وی لاگ دیکھ رہے ہیں۔ ناظرین، 6 ججز کی جانب سے ایک خط لکھا گیا تھا۔ اسی خط کے تناظر میں وفاقی کابینہ نے اسلام آباد ہائی کورٹ کے 6 ججز پہ مبینہ طور پہ کسی جانب سے دباؤ ڈالنے کے الزامات پہ انکوائری کمیشن قائم کرنے کی منظوری دے دی، جس کے سربراہ جسٹس ریٹائرڈ تصدق حسین جیلانی ہوں گے۔ اور وفاقی کابینہ کا جو اجلاس ہے وہ وزیر اعظم شہباز شریف کی زیر صدارت منعقد ہوا، جس میں مختلف امور زیر بحث آئے۔ اجلاس زوم پہ ہوا ہے، جس میں بیشتر وزراء نے آن لائن شرکت کی۔ اب اس پہ بہت سارے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ بینیفیشری جو ہے وہ پاکستان تحریک انصاف بن جائے گی، کیونکہ پاکستان تحریک انصاف باتیں کرتی رہی اور حال کے اندر ان کے خلاف فیصلے آتے رہے، اور جب ان کے خلاف فیصلے آئے ہیں تو بینیفیشری وہ بن جائے گی۔ لیکن اس بارے میں اجلاس میں اسلام آباد ہائی کورٹ کے 6 ججز کی جانب سے مبینہ طور پہ الزامات پہ مبنی جو خط ہیں اس کی تحقیقات جو ہے وہ انکوائری کمیشن قائم کرنے کی منظوری دی گئی ہے، اور کابینہ نے کمیشن کے سربراہ کے لیے ناموں پہ غور کیا اور جسٹس ریٹائرڈ تصدق حسین جیلانی کے نام کی منظوری دے دی۔ اجلاس میں بشام واقعہ بھی زیر بحث آیا ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے بتایا کہ بشام واقعے کے ذمہ داروں کو سزا دی جائے گی۔ انکوائری کمیٹی کو 3 دن میں تحقیقات کر کے رپورٹ پیش کرنے کی ہدایت کی گئی ہے، لیکن یہاں پہ بہت سی بارز ایسوسی ایشن یہ رائے رکھتی ہیں کہ سٹنگ ججز جو ہیں ان کے تحفظات پہ ایک سابق جج کس طریقے سے تحقیقات کر سکتا ہے۔ یہ سوال اٹھائے گئے ہیں مختلف بارز کی جانب سے، لیکن یہاں پہ منطق یہ ہے کہ پہلے شخصیت کو جانچ لیا جائے، پھر اسی شخصیت کے اعتبار کے تناظر میں آپ فیصلہ کر لیں کہ کیا وہ شخصیت متنازع رہی یا وہ متنازع نہیں رہی۔ تصدق حسین جیلانی صاحب کا جب نام آیا ہے تو مختلف بارز ایسوسی ایشن کی جانب سے وہ جو موقف اپنایا گیا تھا کہ ایک سابق جج سٹنگ ججز کے بارے میں یا ان کے تحفظات کے بارے میں کس طریقے سے وہ کام کر سکتا ہے، اور جب سٹنگ ججز یہ کہیں کہ ہمارے اوپر دباؤ ہے تو سابق جج جو ہے وہ پھر کس طریقے سے اس کو صاف اور شفاف انکوائری میں تبدیل کر سکتا ہے۔ تو جب نام منظر عام پہ آیا ہے تو اس سے امید یہ ظاہر کی جا رہی ہے کہ شاید اس کے اوپر اکتفا کر لیا جائے، شاید اس کے اوپر یہ مان جائیں اور اسی کے تناظر میں آگے بڑھنے کی تگودو کریں۔ لیکن انہی دنوں میں جو بڑی بات ہے وہ یہ ہے کہ جب 6 ججز کے خطوط سامنے آئے ہیں تو مختلف بار ایسوسی ایشن کے عہدیدار جو ہیں وہ یہ رائے رکھتے ہیں کہ 10 کے قریب اور ججز بھی ہیں جو یہ خطوط کو دیکھ کے اپنے خطوط لکھنا چاہتے ہیں، اور وہ خطوط لکھنے کے ساتھ ساتھ وہ ان تمام لوگوں کی نمائندگی کرنا چاہتے ہیں جو خطوط نہیں لکھ پا رہے۔ اس میں لاہور ہائی کورٹ، اس میں سندھ ہائی کورٹ سے بھی، اور اس میں ایون پشاور ہائی کورٹ سے بھی افراد ہیں، اور وہ لوگ جو ہیں وہ واضح طور پہ اسی موقف کی تائید کرنا چاہتے ہیں جو 6 ججز کی جانب سے موقف اپنایا گیا۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ کیا اس انکوائری کے دوران، اسی تحقیقات کے دوران، یہ سپریم جوڈیشل کاؤنسل کا اجلاس تو ہو چکا، فل کورٹ بھی تشکیل پایا جا چکا، کیا اس کے دوران یہ جو ججز ہیں جن کے بارے میں قیاس آرائیاں کی جا رہی ہیں، کیا یہ اپنے خطوط بھجوا پائیں گے؟ کیونکہ اسی تناظر میں کہ جب یہ بات چل رہی ہے، دوسری طرف تیزی آئی ہے
तेजी क्या देखने में आई है लाहौर हाई कोर्ट में केसेस के हवाले से। लीगी रहनुमा हमजा शहबाज शरीफ, ख्वाजा मोहम्मद आसिफ समेत 41 अरकान असेंबली की कामयाबी के नोटिफिकेशन को यकदम चैलेंज कर दिया गया है। एन 117 लाहौर से अब्दुल अलीम खान की कामयाबी का नोटिफिकेशन चैलेंज हुआ है। एन 117 से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हिमायत याफ्ता अली एजाज ने अब्दुल अलीम खान की कामयाबी को चैलेंज किया। इसके अलावा एन 118 से हमजा शहबाज शरीफ की कामयाबी के नोटिफिकेशन को भी चैलेंज कर दिया गया। वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हिमायत याफ्ता उम्मीदवार आलिया हमजा की जानिब से हमजा शहबाज शरीफ के खिलाफ ट्रिब्यूनल से रुजू किया गया। आपने ये देखना है कि ये टाइमिंग कितनी परफेक्ट है कि जब एक तरफ वो बात चल रही है कि केसेस के फैसले नहीं हो पा रहे और हमारे ऊपर दबाव है, तो दूसरी तरफ 41 नशिस्तों के ऊपर दरखास्तें जमा हो जाएं। पीपी 152 लाहौर से मलिक मोहम्मद वहीद की कामयाबी का नोटिफिकेशन भी चैलेंज है और वो नुमान मजीद ने इलेक्शन अपीलेट ट्रिब्यूनल से रुजू किया है। एनए 71 सियालकोट से लीगी रहनुमा ख्वाजा मोहम्मद आसिफ की कामयाबी का नोटिफिकेशन भी चैलेंज है और वो रेहाना इम्तियाज डार साहिबा ने चैलेंज किया है। एनए जो 70 है सियालकोट, वहां से चौधरी अरमगान सुबहानी जो है उसकी कामयाबी का नोटिफिकेशन भी चैलेंज कर दिया गया। एनए 75 अगर नारोवाल की बात की जाए तो वहां से एमएनए अनवारुल हक चौधरी की कामयाबी का नोटिफिकेशन भी चैलेंज कर दिया गया। मुमकिनात में से ये जो नोटिफिकेशन चैलेंज किए गए हैं इनमें से ज्यादातर जो है वो टस से मस ना हो, लेकिन उस टाइमिंग का फायदा उठाया गया है कि जिस टाइमिंग में एक तरफ जजेस रुजू कर रहे हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट के, तो दूसरी तरफ लाहौर हाई कोर्ट में ये मंजरनामा क्लियर करवाने की बात हो रही है। पीपी 11 रावलपिंडी से भी नोटिफिकेशन चैलेंज है वहां से जीतने वाले का। पीपी 48 सियालकोट से एमपीए खुरम खान वर्क समेत दीगर अराकीन असेंबली की कामयाबी के नोटिफिकेशन भी चैलेंज है। लाहौर हाई कोर्ट के ग्रेड 21 के ऑफिसर रजिस्ट्रार ट्रिब्यूनल इरफान अहमद नियाजी ने दरखास्तें वसूल की है। अताउल्ला तारट, सैफुल मुलूक खोखर समेत 41 अराकीन असेंबली हैं जिनकी कामयाबी के नोटिफिकेशन चैलेंज हुए हैं। आम इंतखाबात 2024 में कामयाब होने वाले अरकान के खिलाफ इंतखाबी उजरदारियां दायर होने का यह सिलसिला जारी है और इतनी बड़ी तादाद के अंदर जब वो चैलेंज किए गए हैं तो जस्टिस सुल्तान तनवीर अहमद पर मुश्तमिल इलेक्शन अपीलेट ट्रिब्यूनल इंतखाबी उजरदारियों की अपीलों के ऊपर समाअत करेगा। हमने वो वक्त भी देखा है कि जब स्टे के ऊपर किसी सेनेटर ने अपनी मुद्दत भी गुजार दी हो, लेकिन इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ या सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के रहनुमाओं को ये लगता है कि इस मामले के ऊपर जब ये मामला चल रहा हो और जजेस के तहफ़्फ़ुज़ात के ऊपर तहकीकात हो रही हों और दूसरी तरफ जो है कुछ ऐसे जजेस भी हैं जो इन्हीं को देखते हुए, जिस तरीके से लाहौर हाई कोर्ट के जज ने कहा था कि अगर निज़ाम को तब्दील करना है तो 200 अफराद की कुर्बानियां देना पड़ेंगी, तो ऐसे ही मजीद जजेस जो हैं वो अपनी दरखास्तें जो हैं या अपने खतूत जो हैं वो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को भिजवाना चाहते हैं। तो इस ज़मन के अंदर ये तो तैयारी हो रही है, तो दूसरी तरफ बेनिफिशरी जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ उनके वकला को बनती हुई दिखाई दे रही है। दूसरी तरफ इन्हीं दिनों में लाहौर हाई कोर्ट में किसान कार्ड पे मियां नवाज शरीफ की तस्वीर लगाने के इकदाम को भी चैलेंज किया गया। दरखास्त है शहरी मशकूर हुसैन, उन्होंने नदीम सरवर एडवोकेट की वसातत से दायर की है और इस दरखास्त में वज़ीर आला पंजाब हुकूमत और नवाज शरीफ फरीक बने हैं और वज़ीर आला मरियम नवाज ने नवाज शरीफ की तस्वीर के साथ किसान कार्ड की मंजूरी दी। ये दरखास्त में मौक़िफ़ अपनाया गया। पब्लिक फंड्स जो है वो ज़ाती तशहीर के लिए इस्तेमाल किए गए हैं जो कि नहीं हो सकते। किसान कार्ड पे नवाज शरीफ की तस्वीर को लगाना आइन और कानून की खिलाफ वर्जी है। दरखास्त गुजार ने मौक़िफ़ अपनाया। जाने क्यों ये तशहीर से लगता है कि शायद हमारी वाह वाह और जय जयकार हो गई और इस तरह के केसेस बनने दिए जाते हैं। आप अगर हुकूमत कर रहे हैं तो किसको नहीं मालूम कि आप हुकूमत कर रहे हैं, यानी आप तस्वीर लगा के साबित करना चाहते हैं कि हम हुकूमत कर रहे हैं, यानी फिर यह है कि लोगों के दिलों में इबाहम है कि आप हुकूमत नहीं कर रहे और आप अपनी तस्वीर से वो साबित कर रहे हैं कि हम हुकूमत बन रहे हैं। लाहौर हाई कोर्ट पंजाब हुकूमत को नवाज शरीफ की तस्वीर वाले किसान कार्ड जारी करने से रोके ये इस्तदा की गई है और किसान कार्ड पे नवाज शरीफ की तस्वीर लगाने पे आने वाले अखराजात जो हैं वो नवाज शरीफ से वसूल किए जाए, इसमें यह भी इस्तदा की गई है। और लाहौर हाई कोर्ट जो है वो दरखास्त के हतमी फैसले तक किसान कार्ड की प्रिंटिंग रोकने का भी हुक्म जारी कर दे, ये भी इस्तदा की गई है और इस पर भी अभी फैसला आना बाकी है। लेकिन जिस मुल्क के अंदर निज़ाम इंसाफ अगर बेहतर करना था तो ऐसे केसेस से किया जाता जिन्हें मिसाल बना के आप कौम को पैगाम दे सकते और उन तमाम भेड़ियों को पैगाम दे सकते कि जो इस मुल्क के अंदर फिस्तायत को जन्म देना चाहते हैं, इस मुल्क के अंदर
बेराह रवी को जन्म देना चाहते हैं और उसी की राह पे खुद चल रहे हैं। जिस तरीके से टोबा टेक सिंह का वाकया हुआ कि भाई ये बताता है कि उसकी बीवी को मकतूला ने ये बताया था कि बाप और भाई, जो दूसरा भाई है, वो ज्यादती करते हैं उसके साथ, और जब उसे मार दिया गया, अब उनकी गिरफ्तारी के बाद जो इकदामात या तहकीकात की जा रही हैं, अगर निशाने इबरत किसी एक केस में किसी को बनाया जाता और सरेआम बनाया जाता, दूसरों के लिए मिसाल छोड़ी जाती, तो इस तरह के इकदामात कोई ना उठाता। लेकिन यहाँ पे हमारे तरजीहात क्या होती हैं? हमारे यहाँ पे तरजीहात जो हैं वो आवाम का तो सोचना ही नहीं होता। यहाँ पे तरजीहात है खानदान का सोचना। एक ही वक्त में खानदान के सबसे ज्यादा अफराद कौन होते हैं, ये शह सुर्खियां लगती हैं कि कौन मुंतखब असम्बलियों में बैठे हुए हैं, जरदारी खानदान है, ये शरीफ खानदान है। तो फिर पता चलता है जरदारी खानदान ने रिकॉर्ड तोड़ दिया। उनके साहबजादी आसिफा भुट्टो हैं, उनके साहबजादे बिलावल भुट्टो हैं, उनके बहनोई मुनव्वर तालपुर है, उनकी दोनों बहनें डॉक्टर अजरा अफजल पेचोहो और फरियाल तालपुर जो हैं वो भी असेंबलीज की मेंबर हैं। दूसरी तरफ वजीर आजम शहबाज शरीफ हैं, उनके बड़े भाई नवाज शरीफ MNA हैं, उनके बेटे जो हैं वो भी MNA हैं, उनकी भतीजी जो है वो वजीर आला हैं। यानी ये खबरें लगती हैं अखबारों पे, ये शह सुर्खियां हैं कि किस खानदान ने किस खानदान को पछाड़ दिया। अगर हमने ये खबर लगाई होती कि करप्शन करने वाले को सरेआम चौक के अंदर निशाने इबरत बनाया गया है, अगर हमने ये खबरें लगाई होती या हमारे पास ये खबरें आती कि ज्यादती करने वाले को सरेआम फांसी देके उसकी चमड़ी उधेड़ी गई है, अगर हमने ये खबर लगाई होती कि रिश्वत लेने वाले के हाथ काट दिए गए, तो ये मुल्क बेहतरी की तरफ गामजन होता और हमें दूसरी खबरों पे मातम करने की जरूरत ना पड़ती। मुझे दीजिए इजाजत। अल्लाह निगहबान।